Liabilities due to one group enterprise by another will be set off against the corresponding asset in the other group enterprises financial statement. So liabilities asset set off करने मतलब eliminate. Sales made by one group enterprise to another should be excluded both from the turnover and from the cost of sales or other appropriate expense heading in the consolidated statement of P&L. So एच लिमिटेड मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी, होल्डिंग के लिए कंसल्टिंग फीस इनकम है एंड सब्सिडियरी के लिए कंसल्टिंग फीस एक्सपेंडिचर है. सो एप्रोप्रिएट एक्सपेंस हेडिंग कौन सा हुआ? कंसल्टिंग फीस पेड से यहाँ से माइनस होगा एंड यहाँ का कंसल्टेंसी फी रिसीव्ड से माइनस होगा अमाउंट. अगर होल्डिंग सब्सिडियरी एक दूसरे से, होल्डिंग ने कंसल्टेंसी दी तो कंसल्टेंसी फी रिसीव की, वो इसके लिए एक्सपेंडिचर हुआ. सो जब ग्रुप का बैलेंस शीट बनेगा, CFS बनेगा, तब वो एलिमिनेट करना है. ठीक है, मैंने ही मुझे कंसल्टेंसी दी एंड मैंने मुझे चार्ज किया और मुझे कंसल्टेंसी फी रिसीव हो गई. ओके, ऐसे दिखाता है क्या कोई? नहीं, इसलिए वो ग्रुप बैलेंस शीट एंड P&L से निकालना है. ठीक है, नहीं तो उसका मीनिंग ऐसे हो जाएगा, मैंने ही मुझे कंसल्टेंसी दी और मुझे कंसल्टेंसी फीस दे दी और मुझे कंसल्टेंसी फी इनकर करनी पड़ी. इसको कुछ लॉजिक और मीनिंग नहीं है, इसलिए वो एलिमिनेट करना है. टू द एक्सटेंट दैट द बाइंग एंटरप्राइज हैज फर्दर sold the goods in question to a third party, the elimination to sales and cost of sales are all that is required and no adjustments to consolidated profit or loss for a period or to net assets are needed. So कहाँ तक करना है? To the extent जहाँ तक buying and selling, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, होल्डिंग ने सेल किया, सब्सिडियरी ने बाय किया, बट सब्सिडियरी ने आगे सेल किया है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं क्योंकि प्रॉफिट रियलाइज हो चुका है. बट सब्सिडियरी ने आगे सेल नहीं किया तो उसके स्टॉक में है, वो उसके स्टॉक में है तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट का सीन आएगा. However, to the extent that goods in question are still on hand at the year end, they may be carried at an amount that is in excess of the cost to the group, and the amount of intra-group profit must be eliminated, and assets are reduced to the cost to the group. For transactions between group enterprises, unrealized profits resulting from intra-group transactions that are included in the carrying amount of assets, such as inventories and tangible fixed assets, are eliminated in full. The requirement to eliminate such profits in full applies to the transactions of all subsidiaries that are consolidated, even those in which group's interest is less than 100%. आपको एलिमिनेट फुल करना है. आपको ये नहीं सोचना है कि अरे हमारे लिए तो अनरियलाइज्ड है वो, लेकिन माइनॉरिटी के लिए तो वो रियलाइज्ड है. ओके, तो इवन इफ यूर होल्डिंग इज लेस देन 100, आपको क्या करना है? फुल एलिमिनेट करना है. आपके लिए वो प्रॉफिट नहीं हुआ है ना कुछ भी, फिर वो अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करके जो प्रॉफिट आएगा उसका 80% शेयर आपका है. ठीक है, सो ये सिर्फ हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए कर रहे हैं. जब सेपरेट बैलेंस शीट से बनाते हैं तो वो प्रॉफिट दिखता है ना जो होल्डिंग ने कमाया है सब्सिडियरी को सेल करके, बट सिर्फ कंसोलिडेशन पर्पस के लिए वो सेल्स एंड वो परचेस एलिमिनेट होंगे. ठीक है, अभी अनरियलाइज प्रॉफिट इन इन्वेंट्रीज का क्या करोगे? किसके इन्वेंट्री में है वो देखना पड़ेगा. अगर सब्सिडियरी ने सेल किया है तो होल्डिंग के इन्वेंट्री में, होल्डिंग ने सेल किया है तो सब्सिडियरी के इन्वेंट्री में. सो वेयर अ ग्रुप enterprise sells goods to another, the selling enterprise as a separate legal enterprise records profit made on those sales. If these goods are still held in inventory by the buying enterprise at the year end, the profit recorded by the selling enterprise when viewed from the standpoint of the group as a whole has not yet been earned and will not be earned until the goods are eventually sold outside the group.
On consolidation, the unrealized profit on closing inventories will be eliminated from the group's profit and the closing inventories of the group will be recorded at cost to the group. Here the point to be noted is that one has to see whether the intra-group transaction is a upstream or downstream. Upstream is a transaction in which subsidiary company upstream sells goods to holding company, while in the downstream transaction holding company is the seller and subsidiary company is buyer. So upstream में सेल सब्सिडियरी कर रहा है तो होल्डिंग के इन्वेंट्री में होगा, एंड डाउनस्ट्रीम में सेल होल्डिंग कर रहा है तो सब्सिडियरी के इन्वेंट्री में होगा. So in the case of upstream transaction, since the goods are sold by subsidiary to holding, profit is made by subsidiary company. जिसने सेल किया वो प्रॉफिट अर्न करेगा, which is ultimately shared by the holding company and the minority shareholders. अगर अपस्ट्रीम है तो सेल सब्सिडियरी ने किया है, जिसने सेल किया उसने प्रॉफिट कमाया. सो जो प्रॉफिट सब्सिडियरी को होता है उसमें शेयर किसका किसका होता है, होल्डिंग एंड माइनॉरिटी का. करेक्ट. इन सच अ ट्रांजैक्शन इफ सम गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द बैलेंस शीट डेट, the unrealized profit on such goods should be eliminated from the minority interest as well as from the consolidated profit on the basis of their shareholding, besides deducting the same from unsold. तो हम पहले ही पूरे प्रॉफिट से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करके जो प्रॉफिट आता है उसका शेयरिंग करते हैं, वो वही होगा ना. सो पहले ही पूरा अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करो. सो जो प्रॉफिट आएगा वो रियलाइज प्रॉफिट है जो आपने आउटसाइडर्स को सेल करके कमाया है, एंड उसका फिर प्रपोर्शन करो. समझा अपस्ट्रीम का. डाउनस्ट्रीम में प्रॉफिट किसको होगा, सेल किसने किया है, होल्डिंग, तो होल्डिंग को प्रॉफिट हो. बट इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन द होल प्रॉफिट इज अर्न बाय द होल्डिंग कंपनी. देयरफॉर होल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम द अनसोल्ड इन्वेंट्री एंड द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, irrespective of the percentage of the shares held by the parent. So जो स्टेप 5 बना रहे ना हम ये कंसोलिडेटेड P&L, इससे वो अनरियलाइज प्रॉफिट लेस हो, क्योंकि होल्डिंग का जो खुद का प्रॉफिट है 1 लाख उसमें से माइनस करना पड़ेगा ना खुद के प्रॉफिट से. सो होल्डिंग कंपनी में सब्सिडियरी का तो कुछ शेयर है ही नहीं ना. सो यहाँ से सिर्फ माइनस करो एंड इन्वेंट्री से करो. जो एग्जाम में अपस्ट्रीम आएगा या डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम ना. अपस्ट्रीम जो होता है जो सब्सिडियरी का प्रॉफिट होगा ना, मतलब सब्सिडियरी सेल करती है तो सब्सिडियरी का प्रॉफिट स्टेप 2 में आता है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. स्टेप 2 का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करके उसको होल्डिंग एंड माइनॉरिटी में डिवाइड करना है. इसलिए अपस्ट्रीम का देंगे वो ज़्यादा. जो डाउनस्ट्रीम का है वो स्टेप 5 में जाएगा, क्योंकि होल्डिंग का प्रॉफिट स्टेप 5 में है ना. सो वो बहुत इजी है डाउनस्ट्रीम का. इन्वेंट्री से माइनस करो अनरियलाइज प्रॉफिट एंड स्टेप 5 से माइनस करो. बट अपस्ट्रीम का जो ट्रांजैक्शन है उसमें स्टेप 2 हिट हो रही है. स्टेप 2 गलत गई तो बताया आपको आगे क्या होता है. इसलिए वो मैक्सिमम अपस्ट्रीम के ही केसेस देंगे आपको. ठीक है. सो आपको सिर्फ अभी चार्ट करके जाना है रिवीजन के लिए, ये फिर से नहीं पढ़ना है. चार्ट में क्या दिया है, अपस्ट्रीम अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेटेड फ्रॉम होल्डिंग एंड माइनॉरिटी करस्पॉन्डिंग डिक्रीज ऑफ इन्वेंट्री, एंड डाउनस्ट्रीम के लिए अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेटेड फ्रॉम होल्डिंग कंपनीज P&L इन फुल एंड करस्पॉन्डिंग डिक्रीज ऑफ इन्वेंट्री. अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ नॉन करंट एसेट. सो फॉर एग्जाम्पल मैं सब्सिडियरी हूँ एंड मैंने होल्डिंग कंपनी से मशीनरी परचेस की है,
तो मेरे लिए वो पीपीई है, उनके लिए वो सेल्स है। सो अगेन वो माइनस करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स, फ्रॉम प्रॉफिट, एंड मैं मशीनरी के कॉस्ट से लेस करूँगी। ऊपर मैंने इन्वेंट्री परचेज की थी, अभी मशीनरी परचेज कर रही हूँ, ट्रीटमेंट तो सेम ही आएगी ना। सो सिमिलर टू द ट्रीटमेंट डिस्क्राइब अबाउ फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इन इन्वेंट्रीज, अनरियलाइज इंटरकंपनी प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम इंट्राग्रुप transfers of fixed assets are also eliminated from the consolidated financial statements. Unrealized losses resulting from intra-group transactions that are deducted in arriving at the carrying amount of assets are also eliminated if cost can be recovered. नहीं तो उसको वैसे ही रख दो माइनस करते हुए, ठीक है। एक 5 मिनट ब्रेक लो एंड देन 14 करते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं कॉलमनर। अगर आपके 10 सब्सिडियरीज है तो होल्डिंग का एक कॉलम, 10 सब्सिडियरीज के 10 कॉलम, 11 कॉलम एंड 12th कॉलम इज टोटल। तो ये लाइफ में कभी आता ही नहीं है, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिर्फ कॉलम करते जाना है और टोटल करनी, 8 + 2 10, 21 22, 20 + 1 21। हाँ क्योंकि उसमें हमारा शेयर तुम्हारा शेयर ऐसे कुछ नहीं दिखा रहे हैं ना हम। माइनॉरिटी का तुम्हारा 20 इतना, मेरा 80, कैश में इतना मुझे। तो ये कैश फ्लो है सिर्फ, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। देखो नेट कैश फ्लो इतना हुआ तीनों एक्टिविटीज से। सो ये नहीं आने वाला है। अभी जो कंसेप्ट्स बाकी है ना वो इतने कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ही एक है कि ये डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है, मतलब होल्डिंग फीफो यूज कर रही है और सब्सिडियरी वेटेड एवरेज, तो वो यूनिफॉर्म करके लेना है एंड देन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। और इलस्ट्रेशन 15 में कंसो P&L है। इलस्ट्रेशन 15 देखो, उसमें भी ऐसे ऐड करते जाना है। एंड जो भी सेल अभी एच ने सेल किया है गुड्स एस को, तो सेल्स से माइनस होगा 120 लाख एंड कॉस्ट भी माइनस होगी परचेसेस से। इसने सेल किया मतलब इसने परचेस किया ना। सो ये फॉर्मेट तो आपने लर्न किया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सिर्फ यहाँ पर वर्किंग नोट्स देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दोनों के सेल्स एंड अदर इनकम ऐड करके इंटर कंपनी सेल्स माइनस किए, कंसल्टेंसी फीस रिसीव्ड बाय एच, होल्डिंग ने रिसीव की फ्रॉम एस, फिर उल्टा भी हुआ, कमीशन रिसीव्ड बाय एस फ्रॉम एच, वो भी माइनस होगा। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दोनों का ऐड करके लेस होगा परचेज बाय एस लिमिटेड। किसी ने भी एक दूसरे ने परचेज किया
किसी से भी, तो वो लेस होगा, बट यहाँ पर 120 लेस हुआ है, करेक्ट। सो इनके लिए जो सेल था वही कॉस्ट लगा हुआ ना, सो वो सेल डायरेक्ट एक्सपेंस में दोनों को ऐड किया है, चेंजेस ऑफ इन्वेंट्रीज में दोनों की ऐड करके अनरियलाइज प्रॉफिट लेस किया है। एम्प्लॉय बेनिफिट फाइनेंस कॉस्ट ऐड करते जाना है, डिप्रिसिएशन अदर एक्सपेंसेस। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ये होगा कंसल्टेंसी फी रिसीव्ड एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कमीशन रिसीव हो गया। बैलेंस शीट का ही आने वाला है, हाँ आ सकता है, मतलब कम मार्क्स के लिए आएगा वो। हाँ दोनों मिला के नहीं, वो IFRS में आता है, डिप्लोमा IFRS में भी नहीं, उसमें भी एक ही आता है। ये एग्जाम्पल क्या दिया है पढ़ते हैं। इफ NRV expected from sale of such goods is more than the actual cost of the goods, then unrealized loss should be reversed during consolidation process। अगर आपको NRV ज़्यादा लग रही है कॉस्ट से, तो आपका जो अनरियलाइज लॉस था वो रिवर्स कर दो, मतलब ये एलिमिनेट कर दो। However, if it is expected that NRV would not be sufficient to recover the loss incurred on transfer of goods from one entity to another, the unrealized loss should not be reversed. Illustration 14 suggests accounting treatment for the above mentioned transactions in the CFS of A Limited, giving reference of the relevant guidance or standard. A Limited holds 80% of the equity share capital and voting power in B Limited. A Limited sells inventories costing 180 lakh to B Limited at a price of 200 lakh. The entire inventory remain unsold with B Limited at the financial year end. So 20 lakh का प्रॉफिट किसने कमाया है? A ने ना, so A is holding. So deduct from holding P&L है, इन्वेंट्री से भी माइनस करना है। सो ये पूरा एज पर पैरा 16 एक्सप्लेन किया है हाँ उन्होंने, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ये वो, एंड देन यहाँ पर एक दिस वुड बी द केस ऑफ डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन इन द कंसोलिडेटेड P&L, entire transaction of sale and purchase 200 lakhs each would be eliminated by reducing both sale purchase. Further, the unrealized profit of 20 lakh would be eliminated from the consolidated financial statement by reducing the consolidated profit or increasing the consolidated losses and reducing the value of closing inventory. तो ये डाउनस्ट्रीम था, एंड दूसरा अपस्ट्रीम ही होगा ना। A Limited holds 75% equity capital and voting power in B Limited. A Limited purchases inventories. A Limited purchases inventories costing 150 lakh from B Limited at a price of 200 lakhs. The entire inventory remains unsold with A. So अभी परचेज सेल से माइनस करना है 200 लाख, 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है B लिमिटेड को, वो माइनॉरिटी से भी लेस करना है, होल्डिंग के शेयर से भी लेस करना है 50 लाख का प्रॉफिट, एंड ऑल्सो इन्वेंट्री से लेस करना है। दिस वुड बी द केस ऑफ अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। ये परचेज सेल से माइनस करो, 50 lakh would be eliminated in consolidated financial statement for the financial year ended 31st March by reducing the value of closing inventory. In consolidated balance sheet of 31st March, A Limited share of profit from B Limited will be reduced by 37.50 lakhs, being 75% of 50 lakh, and minority share of profit of B Limited would be reduced by 12.50 lakh, being 25% of 50. ओके, इस टाइप का भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो 16 एक ही इलस्ट्रेशन बाकी है जिसमें क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं की है, उसमें बैलेंस शीट रिस्टेट की है। एंड एक्सरसाइज में कितने हैं,
तो ये 3 बचे कंसोलिडेटेड 9 and 10 9 ये तो होगा 9 अभी करना है या आप ट्राई करोगे? कर लोगे? पूछो डाउट होगा तो भेज दूँ। हाँ अभी 23 एंड 27 बाकी है ना एस, बट वो थेरी है, मतलब इसके साथ कंबाइन नहीं है, थेरी है उसमें। फिर वो कराते हैं ब्रांच और बाईपैक। हाँ फिर एएस बचेगा तो बाकी एस 22 भी करना है ना आपको? हाँ मतलब पहले प्रैक्टिकल वाले पार्ट करवा दो, उसके बाद फिर एएस 22 का बड़े एएस में एएस 22 ही बचा है। हाँ और थोड़ा एएस 16 में कैलकुलेशन। हाँ बाकी तो सब थेरी है, ठीक है। सो अभी आपका पेपर कल है 16 मार्च, उसके बाद डायरेक्टली 19 को है पेपर, 16, 19, 21। सो 21 शाम को आना है। टेस्ट सीरीज है ना सेकेंड ग्रुप की? हाँ तो तुम दोनों ग्रुप होने के बाद आ जाओ। 21 से ना? हाँ मतलब जब भी आप क्लासेस तो बाईपैक की ब्रांच 21 मार्च से। नहीं तो आप संडे को भी ले लेना अगर आप आप तो करते रहो ना सॉल्विंग एडिशनल क्वेश्चन बैंक। आपके पास क्वेश्चन नहीं? हाँ दे रही हूँ ना ग्रुप पे। तो मेरा डाउट